हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं basically how you can create projects. So the project that we are going to be covering is basically, we are going to be venturing upon many different technologies, but most of the time these projects are not like pure beginner or purely expert. कुछ कुछ इसमें experts है, but majorly it's mostly based on how you learn stuff. तो इसमें मैं वो भी लिखते चलूँगा कि what you have to learn in the mean time and कैसे आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन तक लेकर जा सकते हो। ऑल राइट। तो हमारे पास चार प्रोजेक्ट्स है बेसिकली। सो वी हैव प्रोजेक्ट वन विच इज़ गिटहब क्लोन, देन वी हैव चैट जीपीटी क्लोन, देन वी हैव कोड रनर विच इज़ अ लीड कोड स्टाइल। आपने कोड फोर्सेस वगैरह देखा होगा, सो दे यूज सम काइंड ऑफ कोड रनर इन द बैकग्राउंड। एंड देन वी हैव अ रिलेटिवली कूल प्रोजेक्ट विच इज़ द प्रोजेक्ट फोर, एंड इसमें हम थोड़ा सा रियल टाइम ड्राइंग इंजन देखेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट. So basically, GitHub clone is basically a collaboration platform, but here we are not talking about the collaboration part. Most of the time, most of the time it will be in this thing. We'll basically focusing on, so how you'll have, so let's imagine how you're gonna create this GitHub and what you need to understand for this. So for creating the CLI, it's just how you do this hash commit structure. तो आप एक बार ब्लॉक स्ट्रक्चर देख लेना, हाउ टू डू ब्लॉक स्ट्रक्चर इन फाइल सिस्टम। एंड इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये पीडीएफ के साथ ही आई मेंशन लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, कि जैसे आपको CLI बनाना है, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड CLI इन पाइथन, सो यू कैन बेसिकली लुक एट दैट। जैसे फाइल कमिट सिस्टम, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इन दिस, so what this does is कि आपका GitHub का UI is basically going to be in HTML, CSS, HTML, CSS or React, whatever you want to do, you can do in that particular framework, or Angular. I like Angular as well, so you can do in that. So this is for front end, right? Front end is simple. You just have to add those buttons कि GitHub कैसा दिखता है वगैरह वगैरह. The main part comes in the uploading the S3 bucket in clouds. So in front end as well, you have to mention three different things, such as how you store the system, how do you store the files, right? When you upload something in the GitHub, how do make sure that when connectivity is lost, how you're gonna handle that stuff. So in this case, what you have to do is, there is a concept which is Project Fugu. In that we have something called as OPFS. So you can use OPFS, first upload to OPFS and store there, and then when internet is stable, you can upload it to the S3 bucket. Now what is S3 bucket? Or you can whatever backend that you are uh, doing. I know it's going to be overwhelming a lot, because these are not simple projects. It's basically project that can help basically build your solid understanding in software engineering. All right. So you have to get through this part, so you have to learn S3. Now all these projects are of minimum, right, minimum 1 to 2 months project. Like you have to really do hard stuff, create all these things and learn on the side. So these are basically uh, learn and do stuff. The thing that I really like to call it, learn and do, or do and learn, whatever you want to do, vice versa and stuff. Now S3 is basically Amazon. So in this case, you can also use your backend system. So in backend, you'll have something this, and backend may you can use Rust, you can use Go, you can use Python, you can use JavaScript as well. That's also equally fine. I would recommend to go with Golang, or but yeah, everyone can go with JavaScript as well. So JavaScript is there. JavaScript में क्या सीखना है? JavaScript में आपको सीखना है uh, Node.js, and probably you need to choose one of the two. Node.js सीखने के बाद JavaScript ही होता है basically वो. Express, and there was one more which was Fastify. Fastify थोड़ा सा fast होता है. It's basically for APIs, and Express is for and then we have Nest.js also, which is used in enterprise. आप इनमें से कुछ भी choose कर सकते हो. No exception in that. Companies सारे ही select कर लेती हैं. All right. Next up, जब आपका ये system बन जाएगा, then how you're gonna store. Now storing का part आपका S3 कर लेता है. Basically this is simple file upload, but the thing is how you wanna read stuff. So इसके अंदर आता है आपका, जैसे हमारे पास डॉट गिट होता है, and there also we have something, हम ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे. Then you have to create into your folder itself, you have to create something called as dot my app, right? मेरा नाम आशीष है. dot my आशीष is a hidden folder. यहाँ पे हम सारे गिटहब के कमिट्स हिस्ट्री वगैरह रख देंगे, कमिट्स हिस्ट्री रख देंगे, देन और फाइल चेंजेस यहाँ पे रख देंगे. सो वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग वी कैन रीड दिस. नाउ यू हैव टू क्रिएट अ सर्विस विच कैन रीड दिस dot this particular function and show it in a GitHub type format.
So this is all you have to learn to basically create this is basically आपका इस पे क्या क्या basically cover हो जाएगा. Basically कुछ ज़्यादा ही वर्ड बोल दिया. I have to do improve on my vocabulary stuff and as well, but yeah. So okay, again basically, so eventually you have to learn file system. Then आपको सीखना है how you can manage all this commit history, so that logic that you have to build. And उसके बाद how you gonna render this file into front end using backend, of course. How you gonna secure your backend using API keys. So इसमें बेसिकली फाइल इंटेंसिव आप कैसे एप्लीकेशन को बना सकते हो, ये पूरा का पूरा उसके अंदर है, गिटहब क्लोन. ऑल राइट, लेट गिव अ टिक चेक मार्क फॉर दिस वन. वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन. ओके, तो ये कवर अप हो गया. नेक्स्ट अप इज दिस वाज, आपको इसमें सबसे इंटेंसिव यही वाला लगेगा, विच इज गिटहब क्लोन. नेक्स्ट अप वी हैव चैट जीपीटी क्लोन और चैट विद पीडीएफ क्लोन. Here also we have many different many different types of what you call things, राइट. तो इसमें तो बेसिकली आपके एआई भी आ जाता है साथ में, बट यू डोंट हैव टू बिल्ड. लाइक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल करेंटली इन द इंडस्ट्री. द फाउंडेशन मॉडल बिल्डर्स, then we have a bigger loop of AI engineers, right, which deploy these LLMs, and इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं. And then we have a big circle of software engineers. ठीक है, तो कुछ ऐसा भी इंडस्ट्री में चीज़ें चलती रहती हैं. नाउ फॉर दिस थिंग व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आपका फ्रंट एंड, आपका रिएक्ट हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, उसमें आप सबका बना सकते हो, रिएक्ट, एंगुलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द फ्रंट एंड इज गोइंग टू बी ऑन दिस. नाउ कमिंग टू द बैक एंड, आप बैकएंड में जाओ. बैकएंड में आपको पहले एलएलएम्स क्या होता है वो जानना पड़ेगा. तो एलएलएम्स इज बेसिकली जस्ट जैसे आप चैट जीपीटी लिखते हो तो एलएलएम्स आपके मिलते हैं. सो माय गो टू रिसोर्स वुड बी टू लर्न हगिंग फेस. तो हगिंग फेस आप सीख लो एक बार. हगिंग फेस में यू हैव मैनी डिफरेंट मॉडल्स विथ एलएलएम्स. तो आपके पास एलएलएम्स के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट मॉडल इन द सेंस कि आपके चैट विथ पीडीएफ वगैरह वगैरह सब इसमें आ जाते हैं. सो यू कैन यूज़ दिस, यू नो हाउ टू डिप्लॉय दिस. तो आप इसमें एज्योर वगैरह यूज़ कर सकते हो, एज्योर ओपन, या यू कैन बिल्ड फाइन ट्यून मॉडल ऑन दिस. तो दिस आर बेसिकली, बस हम एलएलएम का बात कर रहे हैं अभी. देन वी मूव ऑन टू हाउ यू डिप्लॉय दिस स्टफ. एज्योर ओपन एआई, ठीक है. देन व्हाट यू हैव टू लर्न इन दिस, तो आपके इतना सीख लिया. देन देन वी हैव आल्सो सम सर्विसेज सच एज रेप्लिकेट. सो यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल. रेप्लिकेट पे आपको बस मॉडल का इन्फ्रेंस वगैरह देना होता है. देन इट गिव्स एन एंड पॉइंट एपीआई की, एंड उसके बाद आप उससे सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड पॉइंट ऑफ एपीआई. तो ये आपका बेसिकली एलएलएम हो गया. बस बेसिकली आपका एलएलएम जितने भी चीज़ें हैं वो कैसे कैसे करेंगे आपके, वो है इसके अंदर. नाउ फर्स्ट यू हैव टू डिप्लॉय एलएलएम समवेयर. ठीक है, आपका बैकएंड के अंदर एक एलएलएम होगा, राइट. और देन वी हैव टू राइट अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एन इन्फ्रेंस, राइट. इन्फ्रेंस बेसिकली मीन्स चैट. तो आप चैट कर रहे हो तो आपका इन्फ्रेंस यहाँ आना चाहिए. सो वी हैव टू राइट दैट. अब इन्फ्रेंस के बाद जब का इन्फ्रेंस हो जाता है तो बेसिकली वो एलएलएम को कांटेक्ट करता है और फिर उसके बाद टेक्स्ट निकाल लेता है एलएलएम से. सो एंड उसके बाद आप इसमें पाइथन यूज़ कर सकते हो टू कॉल द बैक एंड फंक्शन. तो पाइथन मैं प्रेफर करूँगा बिकॉज यू हैव लैंग चेन एंड स्टफ. तो आप इसके अंदर लैंग चेन भी सीख सकते हो, which basically have all the models. But I would suggest कि आप पहले हगिंग फेस पे जाना. देयर वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हगिंग फेस के अंदर. देन वी ऑल्सो हैव एलएलएम्स एज वेल इन हगिंग फेस. एलएलएम्स का डायरेक्ट कोड भी मिल जाता है, हाउ यू कैन रन स्टफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑल. तो आपके पास पूरा का पूरा पाइथन कोड आ जाता है. व्हाट यू हैव टू डू is basically just calling that particular inference code from a Python backend. और आप Python का backend किस में लिख सकते हो, Flask में लिख सकते हो. then you have Django as well. But Django would be an overkill, so don't, you can use that, but I won't. I basically prefer fast API. ठीक है, you can use this one, and it's super fast. All right, although stable नहीं है, I found some catch up there, but it's going to find in this project. Cool. Now moving ahead, this is Python, this is inference, this is LLM. So ये आपका पूरा का पूरा एक तरीके का chat with PDF, chat with clone हो गया. Now how you gonna chat with PDF? So PDF से chat करने के लिए there are called system prompts. तो basically जो भी आपका PDF आता है, you can use an endpoint. So पहला step, PDF आपके Python backend पे जाएगा. Then it gets converted into text, right? तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा ये. एंड देन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट, व्हाट यू बेसिकली हैव इज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट. आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दो, एंड देन बेस्ड ऑन दैट एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख दो, हे दिस इज दिस, एंड देन यू कैन कॉल दिस इन्फ्लुएंस मॉडल यूजिंग पाइथन, एंड देन सेंड इट टू बैक टू द
वट एवर फ्रंट एंड दैट यू हैव। ऑल राइट, तो ये आपका चैट विद पीडीएफ। तो आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिल गया? आपको बेसिकली सीखने को मिल गया कि एलएम्स कैसे काम करते हैं, आपको एलएम्स सीखना, वेरीफाई कौन सा एलएम किस काम के लिए बेटर है, वेदर यूज लामा, वेदर यूज मेटा, एंड यू हैव बेसिकली एक्सप्लोर्ड द एआई एलएम्स, not created model, but you have, deployed a fully version of application of LLMs, and you have used in some good sense. All right. Next up, we have Docker. Now, this was relatively, I would suggest कि ये medium है. This is medium. This is tough, and this is also tough, and this is mild. Like ये उतना hard नहीं है, ठीक है? But after these 4 projects, you will basically get a hang of how you can, create AI projects and many different kind of projects after this one also. So ये वाला क्या चीज़ है? What do we have in this part is basically coder in the cloud. All right. So we front end HTML CSS JavaScript all the way in the end. Okay. Now the code runner. The code runner. Let's talk about the backend, क्योंकि आपको पता है यहाँ एक फ्रंट एंड होने वाला है, एंड देन यहाँ पे बस बैकएंड से कॉल एपीआई सर्विसेज होने वाली है. बट हाउ डू यू डिजाइन दिस? सो वीडियो की लेंथ ओके 11 मिनट्स हो चुकी है. आई एम गोना रैप दिस. ऑल राइट. सो इसमें आपको सबसे पहले सीखना है अगेन अ पाइथन. सो लेट्स डू दिस इन गोलैंग, ठीक है? सो मैं गो का मैंने एक इंस्टेंस बना लिया. लेट्स जस्ट डू इट इन एक्स वाई जेड लैंग्वेज. मैं कोई लैंग्वेज को पार्शियलिटी नहीं करना चाहता. सो लेट्स जस्ट डू इन एनी लैंग्वेज दैट यू वी आर कंफर्टेबल इन. सो लेट्स से वी हैव एक्स लैंग्वेज, एंड आप इसमें फास्ट एपीआई, आपको इसको एक्सप्रेस पसंद है तो एक्सप्रेस कर लेना, ठीक है? एंड देन जो कोड रनर होता है, बेसिकली वी हैव टू, सो लेट्स से समवन कम्स इन एंड उसने कोई ऐसा कोड लिख दिया वेर मेरा वीएम में वो रन हो रहा है, एंड देन उसमें कोई ऐसा कोड है जिसमें वर्चुअल मशीन, वीएम मींस वर्चुअल मशीन, कोई ऐसा सर्वर है मेरा जहाँ पे किसी ने आके कुछ भी लिख दिया और फिर उसके बाद मेरा सर्वर क्रैश हो गया. सो टू अवॉइड दिस वी यूज डॉकर कंटेनर्स, एंड साइड दैट वी यूज फायर क्रैकर वीएम. आप डॉकर से भी कर सकते हो सारी चीज़ें, क्योंकि फटेगा तो डॉकर फटेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला. सो व्हाट यू हैव टू डू इन हियर इज कि आपने जैसे ही कोई आया, सो एंड कोड टेक्स टाइम टू लोड. ओके, कोड को रन होने में टाइम लगता है. सो उस केस में आपने क्या किया, आपने एक आईडी जनरेट कर दी कि इस आईडी पे लगातार हिट करते रहना, एंड लीड कोड भी सेम अप्रोच यूज़ करता है. तो इस आईडी पे लगातार हिट करते रहना. लेट्स से आईडी आई जनरेटेड इज 156 एंड इट इज़ अवेटेड, कि अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुआ है. ऑल राइट. तो ये अवेट पे चला गया. नाउ व्हाट आई डू, मैं इसको एक क्यू सिस्टम में पास कर देता हूँ. तो एक एक करके क्यू सिस्टम, एक एक करके जितने भी मेरे पास कोड आए हैं उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा. सो लेट्स से द कोड वी हैव इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ऑल राइट. तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके हमारे पास कोड है, एंड देन हमारे पास ये आईडी आ गई, हमारे पास एक क्यू सिस्टम आ गया. अब क्यू सिस्टम के अंदर हमने ये लिख दिया कि हमें डॉकर कंटेनर हमने स्पिन अप कर दिया जिसके अंदर पाइथन का एक सर्वर रन हो रहा है, एंड पाइथन का बेसिकली एक इंस्टेंस है, और उसके अंदर हमने ये डॉकर कंटेनर के अंदर हमने ये कोड पुश कर दिया. अब वहाँ से डॉकर कंटेनर से हमारे पास वो आ गया. अब क्यू सिस्टम ने बोल दिया दैट ID 156 इज कंप्लीटेड, और फिर ये लगातार हिट तो कर ही रहा था सर्वर को, तो इसने यहाँ से ले लिया, एंड देन वी गॉट द रिजल्ट, ठीक है? तो पूरा का पूरा क्यू सिस्टम यू कैन यूज इन गोलैंग. गोलैंग में गो को रूटीन्स होता है, दैट्स वाई यूज गोलैंग फॉर दिस पर्पस. ऑल राइट. तो आपको ये सारी चीज़ें आ गई. दिस इज बेसिकली इनिशियल. इस वाले में ये प्योरली फ्रंट एंड बेस्ड है, थोड़ा सा बैक एंड है विच इज जस्ट फॉर सॉकेट्स. तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या सीखना है, इसको अचीव करने के लिए आपको बेसिकली सीखना है सॉकेट्स, और सॉकेट्स के अंदर देन वी हैव वेब आर टी सी, ठीक है? पर वेब आर टी सी आई डोंट थिंक सो. आपको बेसिकली वेब सॉकेट सीखना है. वेब आर टी सी इज़ फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, सो यू कैन अवॉइड दिस एंड यू कैन यूज़ वेब आर टी सॉकेट्स. इन वेब यू हैव वेब सॉकेट्स, बट थोड़ा बहुत वेब सॉकेट इज़ बेसिकली प्योरली वेब सॉकेट. तो एक लॉन्ग पोलिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, यू कैन ऑल्सो सर्च दैट. मैंने जितने भी कीवर्ड्स बोला आपको बस सर्च करके सीखना है. लॉन्ग पोलिंग कॉन्सेप्ट होता है सॉकेट डॉट आई ओ के अंदर. वेन एवर वेब सॉकेट फेल्स इट स्विच लॉन्ग पोलिंग. लॉन्ग पोलिंग मीन्स कंटिन्यूसली हिटिंग द सर्वर, ठीक है? नो, सॉकेट्स के अंदर वेब सॉकेट्स आ गया. वेब सॉकेट्स के अंदर इट्स बेसिकली देन वी हैव टू ऑल्सो लर्न कैनवास एपीआई, जिसमें हम वो इंजन लिखेंगे. सो इन कैनवास यू कैन राइट, तो आपने एक बैकएंड बीच में लिख दिया विच इज़ जस्ट फॉर हैंड शेकिंग, कि वहाँ से एक एपीआई की आ गई, वहाँ से एक की आ गई, एंड देन दीज क्लाइंट लेट्स से पर्सन 1, यहाँ पे एक पर्सन 1 है विच इज़ फॉर ड्राइंग, एंड देयर इज पर्सन 2 विच इज़ फॉर ड्राइंग, ठीक है? पर्सन 2 विच इज़ फॉर ड्राइंग. एंड ये जो है एक बार में कनेक्शन सेट करा देता है. जैसे ये सेट हो जाता है, ये बीच से हट जाता है, एंड देन दीज टू आर लाइक बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग द सॉकेट सर्वर. नाउ
हम जो ये ड्राइंग इंजन बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी यूजिंग द कैनवास एपीआई दैट वी गेट इन जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, लाइक द ब्राउजर एपीआई, नॉट जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर में एक हमारे पास एपीआई होता है कैनवास एपीआई करके, वेर वी डू स्टफ। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे पर्सन वन ड्रॉ कर रहा है उसकी एक एरे लेनी है, like whatever points that he has drawn on the canvas, because we get all the points, and then you basically have to continuously transfer these points using WebSocket server to person 2। और यहाँ पे भी exact वही dimensions होंगे and वही x and y coordinates में आपको exactly basically एक array है which is getting synced, an array which is getting synced, synchronize हो रहा है लगातार on both the devices which are connected using the WebSocket server। ठीक है, तो आपको इस वाले में सिर्फ इतना ही सीखना है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस इज बेसिकली माइल्ड पार्ट। इसमें हार्ड क्या है, बस एक वेब सॉकेट से एंड देन कैनवास एपीआई, एंड देन द मोमेंट यू लर्न दीस टू थिंग्स, दिस इज गोइंग टू बी केक वॉक फॉर यू। ऑल राइट, आई थिंक आपको फाइल सिस्टम से लेकर देन वी हैव LLMs, AI एंड डॉकर कंटेनर की स्केलेबल सिस्टम। बेसिकली स्केलेबल सिस्टम इसमें कुछ नहीं, बिकॉज दीज आर लाइक द इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट लेवल। तो उसके लिए भी और अगर आप चाहते हैं लेके आ सकते हैं। दिस इज बेसिक फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि वी नीड टू क्रिएट समथिंग। तो इसमें आपको क्या क्या जो भी इसमें कीवर्ड्स लिखे दैट यू हैव टू सर्च फॉर दिस, एंड आपको पूरा का पूरा चीज़ मिल जाएगा। ऑल राइट, दिस इज फॉर इट नाउ, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल, दिस इज फॉर इट नाउ, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन, सी या, हैव अ गुड डे।